but it is not happening. Okay, just chalo. Hello everyone, good evening to all. Guys, is my screen visible clearly and also my voice is clear to all? Everything is okay? Okay, ठीक है. Thank you all, thank you. So today we are going to start a new chapter, that is definite integration. Yes, voice clear है ना सबको? इसमें voice clear? Okay, ठीक है. So today we are going to start the new chapter, definite integration, and in perspective of JEE mains, any competitive examinations, this chapter, weightage of this chapter is very much high, है ना? At least one questions, always you will get a one questions from this chapter and you can solve that question. ठीक है, वो क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो if you understand all the properties very well, right? Okay, so let's start the chapter. In today's session, what we are going to discuss, first is definition of definite integrations. Okay, secondly we will understand what is the geometrical meaning. We'll see the geometrical understanding of definite integration, and also finally we'll be having some properties. We'll try to complete 3 to 4 properties in this session, right? So let's start. What is the definition of definite integration? है ना? Definition is saying, अगर तुम्हारे पास एक continuous function है, that is f of x, which is continuous on the interval closed interval ab, right? एक function है तुम्हारे पास which is continuous in the interval closed interval ab, right? and ये भी दिया है तुम्हें, if integration of indefinite integration of small f of x is equal to capital F of x plus c, then what I'm saying, then integration from a to b, if I'll put the limit, a is called the lower limit and b is called the upper limit of this integral. If I'll put the limit to this integration, then the integration will be capital F of b minus capital F of a. You can say, sir, where the constant is going, आप कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड किए? देखो, ये दिया है ना ऑलरेडी. ये क्या दिया है? ये दिया है कि integration from integration, indefinite integration of small f of x is capital F of x, right? Okay, ठीक है. Okay, you can add ना. अगर हम कांस्टेंट को भी ऐड करेंगे, देखो क्या हो रहा है, a to b small f of x dx, है ना? इसका क्या होता है? कैपिटल F of x, इंटीग्रेशन क्या दिया है? कैपिटल F of x, you want to what RC, okay, from A to B, ठीक है. So what will do, capital F of B plus C minus capital F of A plus C, प्लस माइनस ही हो जाएगा. तो यहां से देखो C से कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, कैपिटल F of B माइनस कैपिटल F of A, where A is called my lower limit and B is called the upper limit. Understand all these things? Understand, guys? All of you understood these things? JNB Bhavnagar? Yes, is it clear? Clear है ना? चलो, let's move to one question, है ना? ये जो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है ना, डेफिनेशन के ऊपर ही आया था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस डेफिनेशन के यूज करना है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है? 2023 24th of January शिफ्ट 2 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है? इजी क्वेश्चन था, है ना? तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन को देखो कैसे कर सकते हैं हम. नहीं, ये जो 48 है, ये जो 48 है, वी आर टेकिंग इट टू आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रल. सो 48 इंटीग्रेशन फ्रॉम 3√2/4 to 3√3/4, ठीक है? एंड दिस बिकम्स 1 अपॉन √ of 9 minus 4x square dx. नाउ व्हाट आई विल डू, आई कैन डू वन थिंग. यहां से जो है ना 4 है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं. ये जो अंडर रूट में डिनोमिनेटर में जो 4 प्रेजेंट है अंडर रूट में, उसको मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है? अगर उसको मैं बाहर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, देखो, इंटीग्रेशन 48 3√2 अपॉन 4 3√3 अपॉन 4 1 अपॉन, व्हाट विल हैपन,
1 upon if I'll take 4 to the 4 outside, है ना, so from the under root it becomes 9/4 minus x square dx. So under root of 4 is 2, है कि नहीं, under root of 4 is 2, so 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो बाहर कांस्टेंट क्या बन गया मेरा 24 इंटीग्रेशन ऑफ 3√2/4 3√2 सॉरी 3√3/4, ये हो जाएगा 1/3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। अच्छा ये तो सबको पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होता है बता सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c होता है, पता है सबको ये चीज, हाँ ठीक है। तो मैं यहां से ये कर सकता हूं, ये हो जाएगा 24 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 3/2 दैट इज 2x अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, और लिमिट लगा दूंगा यहां से क्या 3√2/4 3√3/4। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है कि नहीं, देखो यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम, हाँ 24 इंटू ये हो जाएगा 24 इंटू लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x 2/3 इंटू एक्स, एक्स के जगह में क्या पुट करना है मुझे 3√3/4 3√3/4 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2/3, लोअर लिमिट क्या है देखो 3√2/4 3√2/4, ठीक है। यहां से ये देखो क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 से 2 और 3 से 3, ये कैंसिल होके ये हो जाएगा √2, है ना। तो मुझे क्या मिल क्या रहा है ना, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो मुझे तो ये सारे वैल्यूज पता है ना, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होता है π/3 होता है, एंड 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होता है π/4 होता है। एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4π माइनस 3π और ये हो जाएगा 2 into π, दिस इज योर आंसर। सो 2π इज द आंसर, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन केम इन 2023 जेई मेन, है ना। तो आंसर इज 2π। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, is it clear to everyone? Let me know in the chat box if it is clear to all. Give me a thumbs up if it is clear. If you have any doubt you can ask, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो any doubt you have in this question, कोई भी डाउट है इसमें पूछो, अगर नहीं है तो फिर give me a thumbs up. Shall I move to the next question guys? Yes, clear? Anyone having any doubt you can ask. जो भी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में बचा हुआ था ना, जो जैसे कि ट्रिगो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना, वो चीज को हम वीकेंड क्लासेस में कंप्लीट में कर चुका हूं विद द पीओआईक्यू, थोड़ा सा कंसेप्ट और पीओआईक्यू डाल दिया था, ठीक है। अगर चाहिए तो फिर यूट्यूब जाके तुम देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। विल ट्राई टू कंप्लीट डेफिनाइट इंटीग्रेशन विथ एरिया अंडर कर्व इन दिस वीक ओनली, देन विल मूव थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। चलो okay, let's move to another question. Here you have a question, how we can solve it, है ना, integration from 1 to 2 x square d of ln x, right, d of ln x। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। एक तो फर्स्ट मेथड में यूज करता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, आई एम टेकिंग लेट ln x इज इक्वल टू t, राइट, ln x इज इक्वल टू t ले लिया हमने, तो 1/x क्या हो जाएगा dx दैट इज dt, ठीक है, दैट इज dt हो जाएगा। अच्छा मेरा इंटीग्रेशन अभी क्या बनेगा, सॉरी ये नहीं, सॉरी ln x अगर t है तो x क्या हो जाएगा ना e टू द पावर t हो जाएगा, समझ में आ रहा है, e टू द पावर t हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ना, एक्स स्क्वायर इफ x इज e टू द पावर t, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा e टू द पावर 2t इंटू डी ऑफ ln x दैट इज dt। अच्छा लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, लिमिट कुछ चेंज होने वाला है कि नहीं ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में, लिमिट यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं,
अगर मैं यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट किया ना, लिमिट चेंज हो सकता है कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं ln, देखो जब भी तुम इंटीग्रेशन करते हो किसके रेस्पेक्ट में करते हो? वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? ln x है, ठीक है। कभी भी तुम इंटीग्रेशन करते हो समथिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसमें क्या है ना, एक्स के जगह में ln x है। तो दिस इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रेस्पेक्ट टू ln ऑफ x, राइट। तो ln ऑफ x को मैं t मान लिया, तो ln ऑफ x वेरीज फ्रॉम 1 टू t 2, है ना। यहाँ पे जो ये वाला इंटीग्रेशन में ना, ln ऑफ x वेरीज फ्रॉम, in place of x you are having ln of x, here ln of x is your variable, so ln of x is varies from 1 to 2, right। and ln of x को मैं t मान लिया हूं। अगर ln of x 1 से 2 तक जा रहा है, अगर ln of x को मैं t मान लिया हूं, तो t कहां से कहां तक जाएगा ना, 1 से 2 तक जाएगा, सिंपली लिमिट विल नॉट चेंज, है ना। 1 से 2 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, इसको अभी इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? देखो e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर 2t बाई 2, और लगा देंगे लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा ना, e टू द पावर 4t, सॉरी e टू द पावर 4 अपन 2 माइनस e टू द पावर 1 अपन 2। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 4 माइनस, है ना, e बाई, सॉरी e टू द 2 हो जाएगा ना। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड यू हैव यूज्ड। सेकेंड मेथड क्या कहता है? नहीं सर, ये जो आप ln ऑफ x को ना t मान लिए, ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा दूसरा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा मेथड को यूज करेंगे, तो मेथड 2 को चेंज करते हैं फिर। मेथड 2 ये कहता है, लिमिट क्या दिया है, 1 टू 2 ई एक्स स्क्वायर डी ऑफ ln ऑफ x। अच्छा, ये जो d ऑफ ln ऑफ x तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, अच्छा तो क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, ये d ऑफ ln ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x क्या होता है? 1/x ही होता है ना, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x क्या होता है? 1/x ही होता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये सर नो, क्लियर एवरीवन? अच्छा, तो ये बताओ मुझे अभी, हाँ, अगर ये बताओ मुझे अभी, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट तो चेंज होगा यहाँ पे, देखो कैसे होगा, देखो। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इज 1/x इंटू dx, ठीक है। 1/x इंटू dx होता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज करोगे तुम, ये बताओ मुझे, लिमिट कैसे चेंज होगा यहाँ पे? बोलो, लिमिट को कैसे चेंज करेंगे हम? समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ये समझ में आ रहा है ना? डी, तुम कुछ कंफ्यूज हो रहा है क्या? अच्छा, ये dx लगा दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? d ऑफ ln ऑफ x क्या होता है? d ऑफ x को इस साइड में ले आओ ना, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/x इंटू dx, हो गया, ये हो गया। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, यहाँ पे तो कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है? देखो ना, ln ऑफ x को अच्छा यहां से देखो इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है ना, वेरिएबल क्या है गिवन इंटीग्रेशन में? वेरिएबल क्या है ना, ln ऑफ x है। तो ln ऑफ x वेरीज कहां से कहां तक कर रहा था ना, 1 से लेकर 2 तक कर रहा था। जो जब भी ln ऑफ x 1 था, ठीक है, जब ln ऑफ x 1 था यहाँ पे, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो ये गिवन इंटीग्रेशन में, दिस गिवन इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रेस्पेक्ट टू ln ऑफ x, but now what you are having, x square into 1/x dx, it this integration is happening with respect to x में होता है। अगर ln ऑफ x जहां पे 1 था, तो x क्या हो रहा है? x कहां तक जाएगा? x क्या हो जाएगा ना, e टू द पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ln ऑफ x इज इक्वल टू 2 ले लूंगा तो मैं, अगर ln ऑफ x जब 2 हो रहा था, तो x क्या हो जाएगा ना, e स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ये चीज को मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिमिट क्या हो रहा है ना, x के इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो x अगर ln ऑफ x 1 से 2 तक जा रहा था, ठीक है, तो x कहां से कहां तक जा रहा है ना, e से लेकर e स्क्वायर तक जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? e से लेकर e स्क्वायर तक जा रहा है, क्लियर? ओके, चलो नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। अच्छा, x तो यहां से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास ना, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ई से लेकर ई स्क्वायर तक।
अच्छा लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, e टू द पावर 4/2 माइनस ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, 2 e टू द पावर 4 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज आवर आंसर। ये आंसर वहां पे भी मिला था, यहाँ पे भी मिला। दोनों दोनों मेथड सही है, जो मेथड तुम्हें अच्छा लगता है वही कर सकते हो तुम। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअली क्लियर होने के लिए क्वेश्चन अच्छा था। आया समझ में सबको? बोलो, एनी डाउट हियर? देखो, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो गिवन इंटीग्रेशन था वहां पे तुम्हारा जो वेरिएबल था ना, दैट इज ln of x, but when I'm differentiate ln of x and substituting here, but here the integration is happening with respect to x में हो रहा है। सो अगर ln of x 1 था तो लिमिट चेंज होगा, यहाँ पे ln of x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, तो अगर ln of x में रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो 1 से 2 तक जा रहा था, तो x के रेस्पेक्ट में जाएगा तो कहां से कहां तक जाएगा, कहां से कहां तक, e से लेकर e स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? एनी डाउट यू कैन आस्क, बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में इफ यू हैव एनी डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है तो गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। यस गाइस, एनी डाउट हियर? डू यू हैव एनी डाउट? नहीं है तो भाई थम्स अप तो दे दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। बोलो। अच्छा थैंक यू। चलो थोड़ा एक्टिव रहो यार, थोड़ा तुम बता दोगे ना जल्दी से तो अच्छा लगेगा, नहीं बताओगे तो कैसे भी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट इज नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। है ना, सबको ये चीज पता होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव द एरिया अंडर द कर्व, राइट? एरिया अंडर द कर्व, ये एक्चुअली जो है ना, सपोज ये तुम्हारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तुम्हारा कर्व है। ठीक है, ये कर्व जो है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। सो अगर कोई भी लिमिट में ले लूं a से लेकर b के बीच में, a से लेकर b तक एरिया अंडर द कर्व में पूछा हूं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए ना, दिस मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स dx, है ना। सो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ये जो निकालते हैं ना हम लोग, दिस इज एक्चुअली एरिया, टू फाइंड द एरिया। एक्चुअली हम लोग ना ये जो चीज उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे जब लिमिट एज ए सम पढ़ेंगे और एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे ना, ये चीज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी समझ लो इतना कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसको मैं एरिया निकालने के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली द एरिया ऑलवेज। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग ये नहीं है कि पूरा एग्जैक्टली एरिया निकालना है तुम्हें, राइट? कभी कभी तो क्या करना पड़ता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू ही होता है अलग। चलो देखो उसको समझते हैं फिर। देखो यहां से देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स द इफेक्टिव और नेट एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रहा है सबको? डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है दैट इज गिविंग यू द इफेक्टिव और नेट एरिया अंडर द कर्व। इसको समझने के लिए क्या कर सकता हूं, सपोज ये मेरा जो है ना कर्व, दैट इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का कर्व है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो एरिया, अच्छा मैं अगर ये पूछूं तुम्हें 0 से लेकर पाई तक साइन ऑफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मुझे भी ये बताओ। 0 से लेकर पाई तक डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अच्छा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स, है ना। सो 0 से लेकर पाई तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1। ठीक है, और जीरो, जीरो का ये वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो -2 माइनस ऑफ -2 2 हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। सो 0 से लेकर पाई साइन ऑफ एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, उसका वैल्यू है 2। इज दैट क्लियर? अच्छा अगर मैं तुम्हें ये पूछूं अभी, पाई से लेकर 2 पाई साइन ऑफ एक्स डीएक्स, अभी बताओ मुझे, पाई से लेकर 2 पाई साइन ऑफ एक्स डीएक्स, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो पुट करके देखो ना, ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको? इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई। अच्छा चलो चलो, साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स। लिमिट पुट करोगे, है ना, तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, -2 मिलेगा। ठीक है, -2 मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल देखो ये एरिया कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है ना, एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक तुम्हें 2 दे रहा है, लेकिन पाई से लेकर 2 पाई तक तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, एक्चुअली अभी तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा अगर मैं तुम्हें ये पूछूं 0 से लेकर 2 पाई तक
साइन ऑफ एक्स डीएक्स, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन बताओ मुझे, 0 से लेकर 2 पाई तक साइन ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ मुझे, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 ही होगा ना, 0 होगा, बट एरिया क्या होगा? एरिया अगर मैं तुम्हें पूछूं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन ऑफ एक्स डीएक्स, एरिया क्या हो जाएगा? ये तो 2 है ना, ये भी 2 है और ये भी 2 यूनिट है एरिया। एरिया अगर ये 2 यूनिट्स है तो ये भी 2 यूनिट्स है ना, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है ना? 0 आ रहा है भाई। आए समझ में सबको, है कि नहीं? देखो इफेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव्स यू द इफेक्टिव और नेट एरिया अंडर द कर्व, है ना? इफेक्टिव और नेट एरिया, ऐसा नहीं है इफेक्टिव मतलब यहाँ पे +2 दे रहा है, यहाँ पे -2 दे रहा है ना? लेकिन एरिया 0 से 2 पाई तक अगर मैं एरिया पूछूं तो ये क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है भाई। एरिया इज एग्जैक्ट एरिया जो होता है ना, वो होता है ये 4, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। आया समझ में सबको? क्लियर एवरीवन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस, इफ यस गिव मी अ थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। चलो बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके सो लेट्स प्रॉपर्टी तो स्टार्ट करेंगे, लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन तुम्हें मैं पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये दिया है कि सपोज एफ इज सच दैट, एक फंक्शन दिया है तुम्हें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अच्छा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है? तो ये पूछ रहा है कि फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है, एफ इज सच दैट, ये हो रहा है और फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना? एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, देन इट इज आस्किंग टू फाइंड 0 से -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर 5 दिया है तुम्हें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर तुम्हें 5 दिया है तो ये पूछ रहा है कि -1 से लेकर 0 तक एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में, एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अच्छा, ऑल ऑफ यू नो हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन? व्हाट इज द नेचर ऑफ, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन? कैसे होता है ना? द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, राइट? ठीक है ना? तो ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो ठीक है, तो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, देखो अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं ऑड फंक्शन की, सपोज कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले लो, ऑड फंक्शन को ले लो, मैं ये ले लेता हूं सपोज, है ना? एंड दिस पॉइंट इज सपोज, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1, ठीक है, दिस पॉइंट इज 1। एंड ऑड फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है? इट इज गिवन ना, ये ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है ना, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये अगर 0 से 1 के बीच में ऑड फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो -1 से 0 के बीच में ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा? इस टाइप से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये दिया है मुझे, गिवन है कि जो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 से -1, सॉरी हाँ 0 से -1 के बीच में जो एरिया दिया है मुझे, दैट इज 5 यूनिट, ठीक है? ये पूछा है अगर ये 5 हो रहा है, 0 से -1 के बीच में अगर ये 5 हो रहा है, तो मुझे ये पूछ रहा है कि 0 से 1 के बीच में, सॉरी हाँ सॉरी 0 से -1 दिया है क्या? 0 से 1 है यार, ऐसे नहीं होता है लिमिट। हाँ, 0 से 1 के बीच में मुझे एरिया दिया है, दैट इज 5 यूनिट। तो ये पूछ रहा है कि -1 से 0 के बीच में जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? बोलो, -1 से 0 के बीच में जो एरिया होगा, एरिया तो नहीं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू दे देगा, दैट इज -5। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे जैसे पाई से 2 पाई के बीच में मैं जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल रहा था साइन ऑफ एक्स का, तो मुझे -2 मिला था, ठीक है? सिमिलरली 0 से 1 के बीच में अगर ये 5 दे रहा है, तो -1 से 0 के बीच में कितना दे देगा? -5 दे देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -5। इज इट क्लियर एवरीवन?
Guys, is it clear to all? Let me know in the chat box if it is clear to all. चलो बढ़िया बढ़िया, very good, very good. Okay, let's move to the next thing. Here we are going to start the properties. अच्छा, प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग. तो क्या कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी के लिए, सोच लो. अच्छा, ये फास्ट फास्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डमी वेरिएबल. यहाँ पे ना हम डमी वेरिएबल का यूज करेंगे. ठीक है, तो डमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी. अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई साइन ऑफ एक्स डीएक्स 2 है, तो 0 से लेकर पाई साइन ऑफ थीटा डी थीटा भी 2 होगा. इज इट ट्रू? यस और नो? इज इट ट्रू? अगर साइन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में 0 से लेकर पाई पाई के बीच में डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 2 हो रहा है, सो साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 2 होगा. यस और नो? सो देखो, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है, वेरिएबल कुछ भी हो, वेरिएबल थीटा हो या टी ले लो या कुछ भी ले लो, तुम वेरिएबल को अगर चेंज कर लोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है. ठीक है, ऐसे भी तुम बोल सकते हो 0 से लेकर पाए साइन टी डी टी, इट इज ऑल्सो 2. समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है. ओके, ठीक है. अगर लिमिट सेम रखोगे और वेरिएबल को चेंज कर दोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम ही आएगा. समझ में आ रहा है सबको? यस, बोलो. चलो, ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी. तो याद रखो तुम, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेइंग अगर इंटीग्रेशन में लिमिट सेम है, ठीक है, और वेरिएबल को तुम चेंज कर रहे हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी सेम. कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अच्छा, हियर द प्रॉपर्टी स्वैपिंग द लिमिट्स. ठीक है, ये बोल रहा है कि लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ लिमिट फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स. अच्छा, ये चीज बोल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि अगर मैं लिमिट को स्वैप कर दूं, ए से लेकर बी तक दिया था, अगर बी से लेकर ए तक कर दूंगा तो मुझे नेगेटिव 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अगर जी ऑफ एक्स है, अच्छा, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इफ इट इज स्मॉल जी ऑफ एक्स, राइट? ठीक है, ये मुझे पता है, ये अगर मुझे दिया है. ओके, अगर मैं लिमिट लगा दूं यहाँ पे ए से लेकर बी तक, तो यहाँ पे भी लिमिट यूज कर लोगे तो क्या हो रहा है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली इफ आई फाइंड बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ना, जी ऑफ एक्स, लिमिट लगा दो बी से लेकर ए तक, तो ये क्या हो जाएगा ना, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा ना, जी ऑफ ए, सॉरी, ये जी ऑफ ए, देखो ये हो रहा था जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी. ठीक है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा ना, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. एक्चुअली ये क्या है, ये जो चीज ये क्या है, दिस इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, समझ में आया? प्रूफ हो गया? अरे प्रूफ हुआ है कि नहीं, बोलो, क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे. हम्म, चलो, ठीक है, ठीक है. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. ओके, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टू प्रॉपर्टीज, है ना. 2023 में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन को हम समझते हैं. क्या पूछा था ना, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस सॉरी हाफ टू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू. अच्छा, ये इंटीग्रेशन को हम इवेलुएट कैसे करेंगे, फर्स्ट टू प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, देखो कैसे करेंगे ना, हम एक काम कर सकते हैं ना, एक सब्स्टिट्यूशन को मैं यूज करता हूं. इंटीग्रेशन में क्या दिया है मुझे, इंटीग्रेशन फ्रॉम हाफ टू 1/2 to 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स
dx। ठीक है, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ये करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1/t ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं x को 1/t ले लिया तो dx कितना हो जाएगा ना, -1/t²dt। ये हो जाएगा -1/t²dt हो जाएगा मेरा dx। अच्छा, लिमिट भी चेंज होगा। लिमिट को कैसे चेंज करेंगे? अगर x इज इक्वल 1/2 है, जहां पे x 2 हो रहा था, 1/2 हो रहा था, t क्या हो जाएगा? इफ ए आज x टेंडिंग टू 1/2, तो t कहां कहां तक टेंड करेगा? अगर x टेंडिंग टू 1/2 तो x इज इक्वल 1/2, तो t इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली आज x टेंडिंग टू 2, सो t टेंडिंग टू 1/2 हो जाएगा। तो 2 से लेकर 1/2 हो जाएगा तुम्हारा जो लिमिट अभी चेंज होके, अगर सब्स्टिट्यूशन को हम यूज करेंगे तो लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम एवरीवन? देखो, ये लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगा ना, 2 से लेकर 1/2। ठीक है, 2 से लेकर 1/, लिमिट चेंज कर दिया मैं। सब्स्टिट्यूशन को यूज करोगे तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, है ना। सो 2 से लेकर 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1/x, सॉरी 1/t, 1/t अपन 1/x dx। यार x क्या हो जाएगा? x को लिया हूं 1/t, एंड ये हो जाएगा dx इज इक्वल कितना मिला है ना, -1/t²dt। ठीक है, तो यहां से t को मैं कैंसिल कर सकता हूं। समझ में आ रहा है सबको? यहां से मैं t को कैंसिल कर सकता हूं। तो फाइनली मेरा इंटीग्रेशन जो है वो बन रहा है 2 से लेकर 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1/t अपन t, माइनस को बाहर ले लो, dt। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? एंड इसको मैं i मान लेता हूं। ओके, इसको मैं i मान लेता हूं। जो गिवन क्वेश्चन था उसको मैं i मान लिया। फिर यहां से और एक बार उसको मैं सिमिलरली, इसको अगर मैं i मान लूंगा, इसको, ये चीज को भी मैं आई मान लेता हूँ। यहां से सॉल्व करते हैं, दूसरा आई मान लेता हूँ। ये भी आई है ना, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये भी आई है, बोथ आर सेम, है ना। तो यहां से देखो ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये माइनस माइनस जो है, ये अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटीग्रेशन में तो लिमिट चेंज हो जाएगा ना। माइनस को अगर मैं उठा दूंगा, हटा दूंगा, तो लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगा ना, 1/2 से लेकर 2 tan इनवर्स ऑफ 1/t अपन t dt हो जाएगा। माइनस माइनस साइन को ही हटा दिया मैं। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई करके मैं ये बता सकता हूं, ये क्या हो जाएगा ना, आई क्या हो जाएगा, 1/2 से लेकर 2। ठीक है, और ये tan इनवर्स ऑफ 1/t कितना होता है? कैन आई राइट दिस एज cot इनवर्स ऑफ t अपन t dt। ठीक है, cot इनवर्स ऑफ t अपन t dt। फिर से मैं क्या करूंगा ना, अभी डॉमी वेरिएबल को यूज करके वेरिएबल को चेंज कर दूंगा 1/2 से लेकर, चलो नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। डमी वेरिएबल को यूज करके आई मुझे क्या मिलेगा ना, -1/2 से लेकर 2 cot इनवर्स ऑफ x बाई x dx। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉमी वेरिएबल को यूज किया इसमें। ओके, समझ में आ रहा है? तो एक तो आई मुझे क्या दिया था, एक तो आई मुझे ये दिया था। अगर लिमिट सेम है, दो इंटीग्रल का लिमिट सेम है, ये दोनों इंटीग्रल। अच्छा, आई क्या दिया था मुझे, और एक आई दिया था, गिवन था 1/2 से लेकर 2 tan इनवर्स ऑफ x बाई x dx। ठीक है, अगर मुझे ये चीज पता है, अगर लिमिट सेम है, दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है, तो दोनों इंटीग्रेशन को मैं आड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों इंटीग्रेशन को मैं आड या सब्ट्रैक्ट करूं, मैं यहाँ पे आड कर लेता हूं क्योंकि मुझे फायदा है आड में, एडिशन कर लेता हूं मैं। तो लिमिट 1/2 टू 2 cot इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई x dx हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये चीज पता है ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है, π/2 होता है ना। सो π/2 अपन x। ठीक है, सो π/2 को अभी बाहर ले लो ना। π/2 को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू ln ऑफ x, सॉरी 1/x dx। ठीक है, और मुझे क्या मिला ना, π/2 ln ऑफ x, लिमिट पुट कर दो 1/2 से 2, तो मुझे क्या मिलेगा, π/2 ln ऑफ 2।
है ना, ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ हाफ, ठीक है। और इसको मैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ln 2 and ln of minus 2 1 by 2 is minus of ln of 2, so plus ln of 2, that is pi by 2 into 2 ln 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर जो बनेगा ना मेरा पाई ln of 2, दिस इज योर आंसर, पाई ln 2, करेक्ट ऑप्शन इज pi ln of 2, option 1 is correct. I hope this is clear to everyone. Guys, let me know in the chat box if it is clear to all. If you have any doubt, you can ask. कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। ये क्वेश्चन सबको क्लियर समझ में आ गया सबको अच्छे से? 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन था, आ गया सबको समझ में अच्छे से? बोलो। If yes, give me a thumbs up. If you have any doubt, write in the chat box, please. Everyone. Mehak, JNB class 12, Bhavnagar. Everyone, I'm asking. कोई डाउट है इसमें? देखो कुछ नहीं किया हूं मैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी को यूज किया हूं बस, ठीक है ना। ये गिवन था मुझे, और सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर से आई ले लिया मैं उसको। अगर मैं उसको यहाँ से आई ले लेता हूँ तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर करके मुझे कहाँ तक मिला, डमी वेरिएबल यूज करके ये मिला, तो दोनों आई को मैं ऐड कर दिया, 2i इज इक्वल टू इतना हो गया। तो मुझे पता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। सो यहाँ से इंटीग्रेट इजीली हो गया, तो इंटीग्रेशन इजीली इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे फाइनली आंसर जो मिला पाई ln आपको। क्लियर एवरीवन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल। गिव मी अ थम्स अप इफ यस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। आया समझ में सबको? ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं लिमिट को ब्रेक कर दूं, ठीक है, ये बोला है कि लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं बीच में ब्रेक कर दूंगा उसको, ठीक है, इसका मतलब ये है, कोई भी एक ग्राफ ले लो तुम, ठीक है, और ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो बीच में और एक पॉइंट सी ले लेता हूँ, है ना। तो मुझे ये बोला जा रहा है कि भाई जो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा ना। इन जनरली ऑल्सो वी कैन ब्रेक एनी नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड यू कैन ऐड, ठीक है। तुम बोल सकते हो कि सर हम डायरेक्टली ए से लेकर बी तक क्यों इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बीच में क्यों ब्रेक करेंगे हम, ये अगर दिमाग में आ रहा है सवाल, ठीक है। और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, देखो समझो एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है उसका यूज क्या है। अच्छा, तो ये देखो, सपोज तुम्हारे पास दो ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा जा रहा है, दूसरा ग्राफ ये है, एंड दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू g ऑफ x, दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू h ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x ना, f ऑफ x ऐसे डिफाइन हुआ है, कैसे, f ऑफ x ऐसे डिफाइन हुआ है, एंड दिस पॉइंट इज c, ठीक है। f ऑफ x ऐसे डिफाइन हुआ है, f ऑफ x इज g ऑफ x when f of x is g of x when x is less than c, f of x is h of x when x is greater than c। तो c से छोटा होगा x, तो फंक्शन क्या हो रहा है, व्हाइट वाला ग्राफ g of x हो रहा है, एंड c से अगर x बड़ा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, येलो वाला ग्राफ जो h of x होगा। अच्छा, इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर, सपोज दिस पॉइंट इज 5, जीरो से लेकर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स,
तो क्या करोगे तुम यहाँ पे, ये बताओ मुझे, क्या करोगे? ब्रेक तो करना पड़ेगा ना, अरे ब्रेक तो लेना पड़ेगा। विदाउट ब्रेक में इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है सी के बाद, सी में फंक्शन चेंज हो रहा है ना। देखो तो कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन ना, जीरो से लेकर सी, जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज जी ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, प्लस सी से लेकर 5, जो एच ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट बिकम्स एच ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। सो इसीलिए जो प्रॉपर्टी 3 है उसका इंपोर्टेंस ये है, एंड व्हिच इज एन वेरी मच इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके ऊपर काफी सारा सवाल पूछा जा सकता है ना, बहुत टाइम जेई मेंस ने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर। बढ़िया सा प्रॉपर्टी है। ठीक है। एक्चुअली तुम सोच सोच मतलब पहले से सोचे होंगे कि हम ब्रेक एक्चुअल क्यों कर रहे हैं। अगर मुझे लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट पता है, तो फिर मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ लिमिट को, ब्रेक क्यों कर रहा हूँ? ब्रेक इसीलिए किया जाता है अगर फंक्शन का फंक्शन चेंज हो रहा है, कुछ पॉइंट में अगर फंक्शन चेंज हो रहा है, दैट मींस यू हैव टू ब्रेक, ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है सबको? यस। चल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पे चले, समझे ये प्रॉपर्टी को यूज करके, बोलो। अच्छा चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा मैं अगर ऑप्शन दे दूं A0 B1 C2 D3, बोलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोल सकते हो? क्या हो जाएगा? एनीवन कैन से? देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम। अच्छा तो ब्रेक कहाँ हो रहा है फंक्शन में, देखो ब्रेक कहाँ हो रहा है, मुझे पता है ये ग्रेटेस्ट नीचर फंक्शन दिया है ना, ये क्या फंक्शन दिया है मुझे, ग्रेटेस्ट नीचर फंक्शन दिया है। मुझे ग्रेटेस्ट नीचर का ग्राफ पता है ना, क्या हो रहा है, ग्राफ कैसे होता है ग्रेटेस्ट नीचर का, 0 से लेकर 1 के बीच में ये 0 ही होता है, 1 से लेकर 2 के बीच में ये 1 ही होता है, 2 से लेकर 3 के बीच में ये 2 ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करेंगे अभी, तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन 0 से लेकर, मुझे ये पता है कि 0 से लेकर 1 के बीच में ये 1 0 ही होता है, तो 0 से 1 के बीच में उसको ब्रेक किया, फिर 1 से लेकर 2 के बीच में उसको ब्रेक किया, क्योंकि 2 में ही फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली 2 से लेकर 3 के बीच में मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पे भी ये चेंज हो रहा है। समझा, समझ में आया? ठीक है। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 0 dx, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन गिव्स यू 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 dx, प्लस ये क्या हो जाएगा ना, 2 से लेकर 3 के बीच में ये होता है 2 dx। आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या ना, 0, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ना 1 × x, लिमिट पुट कर दो, प्लस इसका हो जाएगा 2 × x, लिमिट पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 2 - 1 1, प्लस लिमिट पुट कर दो ना अभी, 2 × 3 - 2, 3 - 2 इज 1, सो 2, तो आंसर इज 3। समझ में आया सबको? सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया ना 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितने लोगों को मिला था ये आंसर, कितने लोगों को ये आंसर मिला था? ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी 3 का यूज हुआ है। अच्छा एक जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2023 का जेई मेंस का सवाल है, करके देखते हैं, है ना। मैं कर दूं या तुम करोगे, बोलो, ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो। हम्म। अच्छा इंटीग्रेशन में क्या दिया है उसको अच्छे से देखो पहले।
इंटीग्रेशन में दिया है 0 से लेकर 5 कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 दिया है और लिमिट कहां से कहां तक दिया है ना, 0 से लेकर 5 तक दिया है। ठीक है, अच्छा, तो x/2 दिया है मुझे। ये इंटीजर कब, जब ये इंटीजर बनेगा, फंक्शन जो x/2 दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2, ये जब जब चेंज होगा उसी टाइम हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ब्रेक, देखो देखो 0 से लेकर 1 के बीच में क्या हो रहा है, 1 के बीच में भी ये 0 हो रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में ये 0 हो रहा है। ठीक है, बिकॉज 1/2 0 पॉइंट समथिंग 0 हो जाएगा x/2 का। ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 2 के बीच में ये क्या हो रहा है, 1 से लेकर 2 के बीच में ये क्या हो रहा है ना, ये फिर से 0 हो रहा है, क्योंकि 1.9/2, तो ये 0 ही होगा ना। समझ में आ रहा है सबको, 1.9/2 ये 0 ही होगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 ही होगा ना। सो 0 से लेकर 2 के बीच में, 2 में ही फंक्शन का जो है फंक्शन चेंज हो रहा है, 2 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ना, कॉस ऑफ 0 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस ये x/2 क्या हो रहा है, 0 से लेकर पाई x/2 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2, 0 से लेकर 2 के बीच में क्या हो रहा है ना, 0 हो रहा है, तो ये हो जाएगा फेल है। फिर से कब चेंज होगा, वैल्यू जो फंक्शन है, फंक्शन कब चेंज हो रहा है, 3 में तो चेंज नहीं होगा, 2 से लेकर फिर 4 में चेंज होगा। ठीक है, कहां चेंज होगा, ये 4 में चेंज होगा। सो 2 से लेकर 4 है ना, 3 से लेकर 4 के बीच में ये 2 ही वैल्यू क्या दे देगा ना, 1 ही देगा। 2 से लेकर 4 के बीच में x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 क्या हो जाएगा ना, 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई x माइनस 1 dx। ठीक है, ये एक हो गया। और क्या बचा है मेरे पास इंटीग्रल लिमिट, दैट इज 4 to 5 cos ऑफ 4 के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2, 4 के बाद ये क्या हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। फिर से चेंज कब होगा ना, 6 होगा, क्योंकि लिमिट मुझे अपर लिमिट 5 दिया है, तो 4 से 5 तक में लिया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 4 से लेकर 5 के बीच में क्या हो रहा है ना, 2 हो रहा है। सो पाई x माइनस 2 dx। ठीक है, समझ में आया सबको, ये चीज हो रहा है। अभी देखो ना, इसको सिंप्लीफाई फिर से करते हैं फिर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 कॉस ऑफ पाई, क्या हो रहा है ये, कॉस ऑफ पाई एक्स, अच्छा ये कॉस ऑफ पाई एक्स हो रहा है dx, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, 2 to 4 में क्या हो रहा है, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस पाई। ठीक है ना, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस पाई dx, प्लस इंटीग्रेशन 4 to 5 कॉस ऑफ क्या हो रहा है, पाई एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी याद होगा तुम्हें, और अगर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझे होंगे तो नहीं क्वेश्चन ना सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो कॉस ऑफ पाई एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, देखो यहां से एक चीज को हम समझते हैं, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस पाई, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कॉस ऑफ, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को ले लो, पाई माइनस पाई एक्स, तो कॉस के अंदर जो माइनस होता है वो डिजर्व हो जाता है। ठीक है ना, वो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई एक्स। ठीक है, सो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस 2 पाई। चलो इसको समझते हैं, माइनस कॉमन ले लो, माइनस को कॉस के अंदर डिजर्व हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई एक्स। ठीक है, तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई एक्स क्या होता है, आ रहा है समझ में सबको, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई एक्स क्या होता है, अरे 2 पाई माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो कॉस ऑफ पाई एक्स ही होगा, यहाँ पे कॉस ऑफ पाई एक्स हो रहा है, यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स हो रहा है। अभी सिंप्लीफाई करते हैं उसको, तो फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है दैट बिकम्स 0 to 2 cos of pi x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 cos of माइनस cos of, अच्छा यहां से डायरेक्टली हम माइनस कर देते हैं ना,
माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स, और लास्ट वाला जो है 4 से 5 कॉस ऑफ पाई एक्स। ठीक है, ये हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ये चीज हो रहा है। अभी इंटीग्रेट आराम से कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ मुझे। अभी तो इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ एक्स पाई एक्स बाई पाई, लिमिट लगा दो 0 से 2, माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स का ये भी होता है साइन ऑफ पाई एक्स बाई पाई, लिमिट लगा दो 2 से 4, प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स का जो है ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स बाई पाई 4 से लेकर 5। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो अभी देखो ये जो है जीरो ही होगा ना, साइन अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई, सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साइन इज जीरो ऑलवेज, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, जीरो ही होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, करेक्ट आंसर इज जीरो। आ रहा है समझ में सबको, क्लियर एवरीवन, बोलो इज इट क्लियर टू ऑल, यस और नो, क्लियर एवरीवन गाइस, if yes give me a thumbs up, Gen B class 12, okay, okay, so it's for your homework question, next question is for your homework question, है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, try this question to the next class, try to come to the class with the answer to the next class, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, है ना, ट्राई नोट इट डाउन, 2023 का जेईई मेंस का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आना है तुम्हें, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।